Okay, can you see the screen? Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Morning we were discussing the degree of freedom. It is the number of independent way a molecule can store the energy, like moving translationally or rotation motion and vibration motion. So we have seen monatomic gases only 3 degree of freedom. Moment of inertia will be negligible and no vibration involved. Diatomic में 3, translation सभी में 3 है. Rotation will be 2 because one of the line will be crossing through them, one of the axes. So moment of inertia about that axis will be 0. Other 2 moment of inertia will be there. Therefore, rotational kinetic energy, that is half I omega square, will be significant about z axis and x axis. Translational kinetic energy कितनी होती है? Half mvx square, half mvy square, 3 components of velocity, half mvz square in all 3 cases, mono, di and polyatomic में 3 energy होंगी ये. Rotational is half. In this case rotation कौन कौन सी होगी? Half I omega x square plus half I omega z square. Y के about 0 हो जाएगा moment of inertia. ठीक है. And polyatomic, it can have all the 3 rotational degree, half I omega x square, half I omega y square and z square also. ठीक है. If we neglect the vibrational mode generally they are avoided for numericals point of view. So remaining degree of freedom will be total will be 3 in monatomic. Diatomic में 3 plus 2 5 and polyatomic में 3 plus 3 6. Vibrationals are neglected. ठीक है. तो ये पढ़ा था हमने, इसकी टेबल भी बना ली. We are not writing the vibrational mode here. They will be separately written. All right. Now we see the related topic which is called equipartition of energy. Related topic है इसका. This is one. Law of equal partition of energy given by Maxwell. Maxwell नहीं है इसका पूरा RMS velocity and all. He contributed a lot in this field. So equal partition of energy means all the degree of freedom will have equal energy. Total energy will be equally divided in all the degree of freedom. Energy associated with each degree of freedom will be half kBT per molecule. Total, or we can write it here. Total energy will be equally divided. Total energy of molecule or atom is equally divided in each degree of freedom. And energy associated with each degree of freedom, just let me place it here. ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं let me place it here. Can it come? Yes. थोड़ा सा और गैप करते हैं. Just a minute. Hold on. Let me write here. यहाँ से लिखना. Total energy of gas molecule is equally divided in each degree of freedom.
ठीक है, in each degree of freedom, in each degree of freedom, ठीक है, सभी में इक्वल होगी, and how much it will be? It will be equal to half kBt per molecule. Each degree of freedom में half kBt per molecule. So if F is the degree of freedom of gas particle or gas molecule or atom also, अगर उसमें F degree of freedom, it can have 3. अभी हमने देखा it can have monatomic है तो 3 होगा, vibration we are not counting here. Of course इसमें होगा भी नहीं. Diatomic है तो 5, polyatomic है तो 6 plus vibrational है ना. तो जितनी भी है, तो F is the degree of freedom of gas particle. So total energy of gas molecule will be F into energy in each degree, which is half kBt. kB is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature. Each degree of freedom में इतनी है. Now you can easily calculate, जितनी freedom of degree होंगे उससे multiply कर देंगे. I mean degree of freedom, ठीक है. तो ये आ जाएगा, एक molecule के पास maximum energy इतनी हो सकती है. Total number of degree of freedom into energy in each degree of freedom. So that is what is the law of equipartition of energy. ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसको जस्ट लेट मी रब इट ऑफ. क्लियर? तो आफ्टर नोइंग दिस, आफ्टर नोइंग इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, you can also know the total internal energy again. Already we have seen total energy का फार्मूला क्या था वो, do you remember? Delta U is equal to, or U is equal to NCV/T, और डेल्टा U is equal to NCV/T है ना. तो दिस वाज वन ऑफ द रिलेशंस. दूसरा जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी लिख सकते हैं, डेल्टा U is equal to टोटल एनर्जी माइनस वर्क डन. ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन. नाउ थर्ड रिलेशन इज आल्सो अवेलेबल विद अस. You are lot of freedom for internal energy. 3 equations हैं तुम्हारे पास, you can use any one of them. So let us see what is the third one. Third one is here. Internal energy of gas, if n is the total number of gas particles, ठीक है, or molecules, then total energy or internal energy of the gas, ये किसकी, एक molecule की है ये. This is for one molecule. If n number of molecules are there, multiplied by 1. N, ये 1 की है देखो. This we are putting it here. If n molecules are there, multiplying by n. So this is the another relation. So let's see what else we can, what else we can write. देखो, n को क्या लिख सकते हैं, number of moles multiplied by Avogadro's number. Total number of gas particle is total number of moles into Avogadro's number, and this remaining as it is. Now Na into Kb क्या होता है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, is equal to R. R is equal to Na into Kb. So we have got the other formula. देखो, easy to remember. इसको क्या पढ़ सकते हैं, NFRT, नफरत डिवाइड बाय 2, half of the नफरत. All right, half नफरत है वो. और if temperature changes, internal energy will also change. तो डेल्टा U भी लिख सकते हैं in terms of change. We can write only one thing will change here. Temperature will change, will make the change in internal energy. Others are constant. Half also constant, and also constant. F also R. है ना. 1, 2, 3, 4 and constant here. 5 terms है इसमें, including half. We have the 5 terms. In F also is there. This is one more relation. This relation help us to get the relation of CV in terms of R and CP also. CV हमने कुछ पढ़ा था, CV का R upon gamma -1 पढ़ा था ना, but purely with the R नहीं पढ़ा अभी हमने.
तो let us see now. Sir. All right. Yes, sir. Sir, I'm ready with the link. I'm putting the link on the group, sir. Now, why we need the link now? Already class सर is starting. ये आपका क्लास बंद हो जाएगा ना सर, फिर इसलिए? नहीं तो फिर सब चेंज करना पड़ेगा ना फिर से पूरा। हाँ सर, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी लिंक पे केमिस्ट्री भी चलेगा इसलिए। नहीं, मैम ने बोला था आप अपना स्टार्ट कर लेना और न्यू लिंक यू विल सेंड द न्यू लिंक एट 2:15, आई मीन 2:45। तो 2:45 से 5 मिनट पहले भेज दीजिए। 1:45 बोला था मैम ने, तो मेरा लिंक अभी खत्म हो गया 1:30 को। नहीं तो एक काम कीजिए ना, अभी लेट द क्लास बी कंटिन्यूड और केमिस्ट्री क्लास से थोड़ा पहले आप लिंक अवेलेबल करा दीजिएगा, तो फिर वो यहाँ से छोड़ के ज्वाइन कर लेंगे, है ना। अभी सब डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सभी को लिंक संभाल के रखनी पड़ेगी ना आधा घंटा, इसलिए। हाँ तो बात कर लीजिए, बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग भी है तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। ठीक है सर। ऑलराइट, ओके। तो ऑलराइट, दिस इज इंटरनल एनर्जी का दूसरा फार्मूला एंड let us see how can we use this to get CV and CP and gamma. तो देखो, calculation of CV, CP and gamma in terms of R and F, है ना। देखो ये रिलेशन हमने पहले सीखा था, NCV डेल्टा T, और ये अभी सीखा नफरत वाला, है ना, चेंज ऑफ एनर्जी। तो इनको दोनों को इक्वेट कर दो। इफ वी इक्वेट बोथ, तो एक साइड में तुम्हारा ये आ गया और दूसरी साइड में ये आ गया, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द राइटिंग, लेट मी सी, ये f है, इक्वेट कर दिया, क्या क्या कैंसिल हो गया, डेल्टा टी और n भी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जस्ट लेट मी सी, CV इज 1/f/r/2, ठीक है। तो अभी हमें अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, सीधे पुट कर देंगे f की वैल्यू, CV मिल जाएगा। और CP क्या होता है, इट इज प्लस r, C प्लस r की वैल्यू पुट कर दी तो ये मिल जाएगा हमें। r कॉमन ले लिया, f/2 बचा अंदर और +1। नाउ गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ CP/CV, पुटिंग द वैल्यू ऑफ CP हियर, ये वाली, और CV की हियर। तो यहाँ से r हैज गॉन, ठीक है, और इसको ब्रेक करके लिख लिया f/2, और नीचे भी f/2 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में 1/f/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड f। तो ये क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, गामा एंड f आर रिलेटेड लाइक दिस। अगर f को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा तुम्हारा, गामा -1। ओके, यू कैन चेंज द साइड, गामा -1 इज इक्वल टू 2/f, तो यहाँ से f इज इक्वल टू 2/गामा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस यू कैन रिमेम्बर, बाद में साइड चेंज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। ऑलराइट, नाउ आफ्टर नोइंग दीज रिलेशंस वी कैन मेक द टेबल। नाउ मोनोएटॉमिक का CV कितना होगा और गामा कितना होगा, CP कितना होगा, ये CP का रिलेशन है। CP का रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं, ओनली रिमेम्बर दिस, और इसी में +r कर देंगे तो CP मिल जाएगा। ओनली वन यू कैन रिमेम्बर, यू कैन गेट अदर वेरी क्विकली, गामा वामा सब मिल जाएगा इसी से। 1 इज इनफ टू गेट ऑल द थिंग्स। ऑलराइट, लेट्स सी, टेबल बनाते हैं इसके। देखो यहां तक क्लियर है। CV इज FR/2। अर्लियर हमने CV का एक रिलेशन निकाला था, CV इज इक्वल टू R/गामा -1। दिस बोथ विल गिव यू सेम वैल्यूज, जो इससे आएंगी उससे ये भी आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन अर्लियर हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा था मोनोएटॉमिक क्या होता है। नाउ वी कैन सी फॉर ईच डिग्री, ईच एटॉमिसिटी ऑफ गैस, CV विल बी हाउ मच। ऑलराइट, ये दोनों इंटरएनर्जी के फार्मूले इक्वेट करके हमने CV का रिलेशन निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड R, एंड गामा का भी एक रिलेशन निकाला, which may not be required
फर्दर इसी से काम चल जाएंगे सर, बट दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई टोल्ड यू। ओके, तो देखो अभी हम अगर टेबल बना लें इनका विदाउट कंसिडरिंग द वाइब्रेशनल मोड, तो लेट अस सी, ये मॉलिक्यूल्स हैं मोनोटॉमिक, फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गन एंड सो ऑन। एफ कितना होता है इसका, एफ इसका 3 है, तो एफ एफ आर बाई 2 है ना। इसका एफ 3, यहाँ पे एफ भी लिख देते हैं एक बार, ठीक है। इसका 6, इसका 5 होगा और इसका 6 होगा, तो एफ आर बाई 2 हाफ कर देंगे यहाँ पर, 3/2 आर, यहाँ भी एफ आर बाई 2 5/2 आ जाएगा, यहाँ भी एफ आर बाई 2 6/2 विल बी 3। और सीपी कितना होता है, इसमें आर ऐड कर दो, तो दिस विल बी सीपी 5/2 7/2 4, ठीक है। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, इसको डिवाइड कर दो, इसको 3/2 से डिवाइड कर दो, ये आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 5/2 बचेगा। तो गामा ऑफ द मोनोटॉमिक गैस इज 1.67 विच इज मैक्सिमम। इसका कितना आएगा, 7/5, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/5 आएगा विच इज 1.4। ऑक्सीजन का 1.4 होता है, नाइट्रोजन का भी 1.4 होगा। एंड पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक्स, इसमें ये 4/3 आर, तो आर आर कैंसिल, 4/3 दैट इज 1.33। और 4/3 इज आल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पढ़ा था 10th में, मिनिमम है, दिस इज मिनिमम, यस लास्ट वन इज मिनिमम। This you are supposed to remember for numerical solving, particularly for competitive examination, है ना। देखते हैं, तो दिस टेबल यू आर सपोज टू रिमेम्बर। और इसमें वाइब्रेशनल का एनसीईआरटी बुक में वाइब्रेशन थोड़ा डिस्कस किया है, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। वाइब्रेशन का देखो, we may not need it in the numericals, but carry part में you may just require to write। देखो नोट में लिख लेते हैं, if diatomic molecule is not rigid but has an additional vibrational mode, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 फॉर ट्रांसलेशन एंड 2 फॉर रोटेशनल, ये 2 लिखो, एंड 2 फॉर वाइब्रेशनल, टोटल 7 हो गई। तो एफ इज इक्वल टू 7/2, तो सॉरी 7/3.5 लिख सकते हैं, लेट इट बी 7r/2। सी इसमें प्लस आर कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, दैट विल बी 9/2, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, गामा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, 9/7। यहाँ पे आर नहीं रहेगा, प्रिंटिंग एरर है, आर विल नॉट बी देयर, 9/7 आ जाएगा। इफ वी टेक द वाइब्रेशनल मोड आल्सो, ये ट्रांसलेशनल की है, ये रोटेशनल की है, और ये वाइब्रेशनल की है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। Similarly, for polyatomic molecule, we have the three translation, 3 rotational and F vibrational। तो कितनी हो जाएंगी, 3 + 3, और वाइब्रेशनल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, पता, एक तो ½ mv² वाली, वाइब्रेशन में देखो ईच वाइब्रेशन में 2 हो जाएंगी, देखो यहाँ पे 1 is due to kinetic, 1 is due to, तो वाइब्रेशनल में 2 मॉलिक्यूल्स की मिलके दे विल बी 2। तो इसमें टोटल एफ है, यहाँ पे देखो 3 + 3, और 2 मॉलिक्यूल, उसको डबल करना पड़ेगा, बिकॉज ईच डिग्री में ईच उसमें 2 आती, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इसको 2 कर दो, और डिवाइड बाय, ओके दिस इज 6 + 2f डिवाइड बाय 2, ये 3 + f आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 + f r, ठीक है। तो इसमें प्लस आर कर दो, तो ये 3r + r 4r हो जाएगा, तो गामा डिवाइड कर दो दिस बाय 3 + f, तो ये आ गया। तो दिस इज फॉर, यहाँ पे 2 क्यों लिया, बिकॉज each pair will have
2 degree of freedom. Due to vibrational mode, due to vibrational. So this is the point you have to remember, theory point of view, otherwise no much significance for this, because इसमें f तो पता है, f will be given, then only you can solve it. चलो, this is the question we'll solve now. Can you try this question? Okay. Gas mixture consists of 2 moles of oxygen, N1 to the air, or N2. Okay, this is N1, this is N2. और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन is diatomic, है ना, and argon is monatomic at temperature T, neglecting vibrational mode. The total internal energy of system, कौन सा फॉर्मूला लगाए? नफरत वाला, U1 plus U2. So U1 is half N1 F1 RT, टेम्परेचर सेम है, ये half N2 F2 RT. नंबर ऑफ मोल्स जो हैं पहले वाले में कितने हैं? 2 ही हैं. ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 + 2 5. वाइब्रेशनल नहीं लेनी. आर्गन के 4 नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इट इज मोनोएटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 ओनली. सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 2 2, ये 5 RT प्लस 6 RT, 11 RT. Which is the answer here? D option. Okay. Similarly, this is the question. देखो ये question है. Almost similar question. It was asked recent, last to last year. Almost similar. देखो ये 3 है. You can complete this, है ना? Just take the snapshot and complete it yourself. 3. देखो सॉल्व करके क्विकली बता सकते क्या? Quick answer. Can you reply? Oxygen is 5. Sir, 15 RT. Okay, I think it's okay. इसमें कितनी है? दूसरा क्या आर्गन है? एंड उसका both 15/2, 15/2. हाँ, तो 15 इज राइट आंसर. मैंने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले. आई थिंक 15 ही आया था. हाँ, 15 इज द राइट आंसर. ऑलराइट, देखो अभी हमने गामा सीखा. मोनोटॉमिक का गामा मैक्सिमम है कितना? 1.67. 1.67. डायटोमिक इसका 1.4 है, इसका सबसे कम है. तो और हमने पहले सीखा था स्लोप जो है. डू यू रिमेम्बर? एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, है ना? गामा माइनस गामा P/V था, तो गामा पे डिपेंड कर रहा है. मोर स्लोप, मोर गामा मीन्स मोर स्लोप. तो मोनोएटॉमिक का सबसे ज्यादा स्लोप है. देखो ये सबसे ज्यादा वर्टिकल दिखेगा, उससे कम ये, एंड ये ऐसे. एट एनी पॉइंट यू कैन से चेक द स्लोप. तो मोनोएटॉमिक जो है सबसे लार्ज स्लोप रहेगा. तो बेस्ड ऑन दिस देयर इज द क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन. देखो ये भी क्वेश्चन स्लोप पे बेस है. देखो, कैन यू
Can you just guess which will be the answer, right answer? 2 का slope more है, देखो it is more, just more vertical है ना, more close to 90 and ये less slope. You sit down here, यहाँ पे fast, more slope you will feel and इधर less. So 2 has to be what? One has to be diatomic, because di and monatomic का ही दिया हुआ है यहाँ पर, और 2 has to be monoatomic sequence में. Sequence क्या लिखनी है? 1 जो है 1 and 2, तो 1 का कम slope है, it has to be diatomic, तो either this or this, और 2 का slope is more, it has to be monatomic, तो इसमें से कौन सा monatomic है? Of course helium. Helium. B is the right option है ना. दोनों इन दोनों का कैसा आएगा ग्राफ? It will coincide. O2 and N2 का coincide, दोनों both are diatomic. So this was the question in some competition. JEE का question है, JEE advanced का. But these are just questions can be done very easily if you know the concept. तो ऑप्शन बी है ना, यहाँ पे भी लिख दूंगा. तो ये भी बहुत क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट आज ही हमने किया था मॉर्निंग में. एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 molecule at the particular temperature is 0.04 ATV. Translation kinetic energy of N2 will be how much at same temperature? The temperature same, therefore energy same. Single molecule की कितनी होगी? 3/2 kBT. If T is same, it doesn't depend upon the nature of the molecule. तो same किस में दिखा रहा है? ये सेम सिस्टम ऑफ यूनिट, सेम यूनिट EV में ही रहेगी. You don't have to calculate anything. If you remember the formula क्या था? 3/2 kBT. Independent of nature of the gas, only depends upon the temperature. Morning we did it. Concept याद रखो. You can do it any question. I'm telling you. Thermodynamics is not that difficult. ये सब हम लोग JEE के नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं. And ऐसे ही NCERT बुक में भी दिए, but they are not given much. Therefore we are practicing from the other source. तो ये भी क्वेश्चन देखो. Average translation kinetic, again same topic, same हो. Translation kinetic energy and RMS speed दिया हुआ है of oxygen at 300 Kelvin, this much and this much respectively. The corresponding values at 600 Kelvin. Temperature doubles. Temperature becomes twice. तो kinetic energy भी twice हो जाएगी. RMS कितनी हो जाएगी? √2. अरे √2 है ना, रूट ऑफ ट्वाइस. ये तो डबल कर दो सीधे. 6.21 तो 12.42. 12.42 किस में दिख रहा है? इसमें और इसमें. और इसको √2 टाइम्स कर दो, रफली 40% मोर है ना. तो बिना कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं. यस, इन्होंने इसमें डबल कर दिया है. दिस कैन नॉट बी. दिस इज रफली 40% मोर है. विदाउट कैलकुलेशंस यू कैन गेट द आंसर. डी आंसर है ना. यू डोंट हैव टू यूज द पेन इवन. पहले रूल आउट कर लो. ट्वाइस है तो ये और ये ऑप्शन हो गया. फिर RMS इज रूट ऑफ टी. रूट ऑफ 2 कितना होगा? 1.414. तो रफली 40% मोर. इसका रफली 50% करके देख लो. 50 is 240. तो है ना, तो उसके आसपास इतना ही आता है. Without solving you can reply. So this is again JEE का question, but can be easily done. Now last topic is remaining in this mean free path. तो ये molecules हैं, थोड़े बड़े दिखाए गए हैं. Mean free path means it is the average distance between two successive collisions of molecule of gas. दो कोलिजन के बीच में, सपोज यहाँ पे इधर कोलाइड हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ कोलाइड हुआ. तो सपोज ये डिस्टेंस L1 है, ये L2 है,
इनका मीन कितना होगा L1 प्लस L2/2, है ना। 2 कोलिजन में मीन निकालना है या 3 कोलिजन में निकालना है, तो बट अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द distance between 2 collisions. Therefore, we have to use other method to get the mean free path. है ना। तो इसमें क्या किया, अभी इसमें क्या assumption है कि देखो मॉलिक्यूल्स का डायमीटर हमने एज्यूम किया कि d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से देखो ये डायमीटर, या फिर यहाँ से देखो ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा इतना, तो d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मूविंग विद द एवरेज वेलोसिटी v, एवरेज वेलोसिटी v ले लो, v सिंबल लो या फिर v, दोनों जगह यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिया, यहाँ पे ऐसा लिया, बोथ सिंबल्स आर सेम, मूविंग विद द एवरेज वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो t में कितना वॉल्यूम कवर, इसमें t में कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, एवरेज वेलोसिटी इज v and delta t time में it will cover up to here, so this will cover this much volume in इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उससे कोलाइड कर सकता है। देखो इस वॉल्यूम में, जैसे ये लास्ट मॉलिक्यूल है, इसका ऐसे रहेगा, इस वॉल्यूम से अगर बाहर निकल रहा है वो, है ना। ओके, जस्ट लेट मी गिव यू सम मोर पॉइंट देन आई विल एक्सप्लेन दिस। तो देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। Suppose the molecules of gas are spherical of diameter d. Focus on a single molecule with an average speed v. It will suffer the collision with any molecule that comes within the distance d. इतने डिस्टेंस पर देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ये इतने डिस्टेंस पर अगर आ गया दूसरा मॉलिक्यूल, सडनली इट विल कोलाइड विद दिस। इस पे फोकस करना है, इससे थोड़ा सा उसका सेंटर बाहर निकला तो कोलाइड नहीं। तो विद इन d it will collide with all the molecules, that is the meaning here. It will suffer the collision with any molecule that comes within the distance d between their centers. In time delta t it will sweep the volume pi d square v. ये वाला वॉल्यूम लेना है, इतना वॉल्यूम नहीं लेना है, रेडियस वाला वॉल्यूम नहीं लेना है, ये डायमीटर वाला वॉल्यूम लेना है, बिकॉज इसका भी रेडियस है ना दूसरे मॉलिक्यूल्स का, उसके साथ कोलाइड हो रहा है, इतना वॉल्यूम लेना है, दिस मच वॉल्यूम, दैट विल बी पाई। इस वॉल्यूम का रेडियस कितना आएगा, d आएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायमीटर का रेडियस, वी आर टॉकिंग अबाउट द radius of the cylinder, which will be this because it is going to collide with the volume of the distance of the radius, which is d, distance between the center of two molecules, उसके साथ collide होने वाला है। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर v, ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज v इंटू टी, लेंथ हो जाएगी, दिस विल बी लेंथ। देखो लेंथ ऑफ द सिलेंडर विल बी v डेल्टा टी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ इसको, लेंथ ऑफ द सिलेंडर विल बी, इसका कैपिटल एल ले लो बिकॉज स्मॉल एल हम फ्री मीन पाथ के लिए डिनोट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, तो दिस इज लेंथ। तो पाई डी स्क्वायर एल, एल की जगह वी टी पुट कर दिया, इनके साथ कोलिजन होगा इनका इतने वॉल्यूम में। तो लेट एन वी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये वॉल्यूम कवर्ड है जिसमें कोलिजन होने वाला है, और ये यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ कोलिजन, ये एन अपॉन वी एक्चुअली, और ये भी है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन डेल्टा टी विल बी वॉल्यूम पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, जितने पार्टिकल्स उतने वॉल्यूम में होंगे, सबके साथ टकराएगा वो, तो पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कवर्ड। तो ये हो गया, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए। तो रेट ऑफ कोलिजन और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड मींस टाइम से डिवाइड करना है, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी इनफैक्ट, यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा टी विल गो, and this is also called rate of collision or frequency or number of collision per second। तो ये number of collision per second आ गया, this is called frequency। और time of collision इसका reciprocal हो जाएगा, time between two successive collision will be
रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये रेट है, इट इज फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं टाउ इज इक्वल टू 1/f, ये फ्रीक्वेंसी थी, तो फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। नाउ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज द प्री मीन पाथ, द स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल टू vt होता है, डिस्प्लेसमेंट इज vt, तो v यहाँ पे लिखा, और ये कौन सा टाइम है, ये दो कोलिजन के बीच का टाइम टाउ, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर डेल्टा वी है, सॉरी ये डेल्टा वी डिनोमिनेटर के डेल्टा वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, दिस विल बी रिमेनिंग, दिस विल बी रिमेनिंग, डी स्क्वायर विल बी रिमेनिंग, और यहाँ पर डेल्टा वी और ये नीचे डेल्टा वी विल गेट कैंसिल, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, and this can be mean free path, but it is not the mean free path. Why? Because यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि in this derivation we have assumed that other particles are at rest, but all molecules are moving, therefore that factor we have to consider, therefore average relative velocity is taken, which is √2 times of the average velocity. तो यहाँ पर जो velocity था उसको √2 times करना था, मैं बाद में ही कर रहे हैं, तो वो रहेगा टर्म √2 टर्म विल रिमेन, तो दिस इज द एक्चुअल डेरिवेशन। ठीक है, फ्री मीन पाथ का हमने क्या क्या किया, पहले हमने वॉल्यूम, कोलिजन का वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लिया, कितने वॉल्यूम में कोलाइड होंगे, है ना, पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा वी इंटू पाई वी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी निकाला था ना, देखो कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में कोलिजन विल टेक प्लेस, उसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने, पाई डी स्क्वायर वी टी। फिर अगर n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में कितने, इसमें कितने होंगे, इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वॉल्यूम का है, उस वॉल्यूम में जितने